In 2012, if you got discharged from an Indian hospital after a stroke, heart surgery, or major accident, you were on your own. No structured recovery, no home care, no one to help you regain what you lost. Dr. Gaurav Thukral saw this gap as an ICU doctor. Instead of accepting it, he left clinical medicine to build something that didn't exist. India's first professional home healthcare and rehabilitation company. 13 years later, HCH has served more than 9 lakh patients, raised more than 500 crores. Today, Dr. Gaurav explains how you build a category from nothing when everyone says it won't work. How are you, Dr. Gaurav? I'm good. How are you, Ansh? I'm pretty good. Okay, Dr. Gaurav, before just coming to the questions and all, I just want to know your story. Like everyone knows Dr. Gaurav as a doctor, but I want to know like what is the Dr. Gaurav before Dr. Gaurav? Like how was your childhood? How was your journey in like college and then becoming what you are today? Like helping like thousands of patients in a single day. So yeah, would love to hear your story. Yeah, I was born and brought up in Amritsar, right? And I was born as a third generation doctor, right? और मेरे घर में जहाँ देखो वहाँ डॉक्टर ही थे. मम्मी पापा मौसा मौसी मामा मामी इवन माय नाना जी वाज अ डॉक्टर, राइट? एंड सो प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता था कि डॉक्टरी के अलावा कुछ कर भी सकते हैं, राइट? एंड कमिंग टू कॉलेज पहली बार घर से निकला था, पीएमटी में पास होकर निकला था, लेकिन कॉलेज में जैसे ही पहुंचा लोगों ने बताया तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है. बट आई वुड स्टिल से दोज 5 years इन भोपाल आई मेड बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स. दोज वर द बेस्ट डेज इन द हॉस्टल. आप इतना कुछ सीखते हो. एंड आई ऑल्सो वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई रूल्ड द स्टेज फॉर दोज 5 years. फिर आया असली सीखने का टाइम जब पीजी आई, राइट? आई वॉज इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम एंड इट वॉज अ ग्रूलिंग टास्क. आई डिड माई DNB in medicine, but again very fortunate to learn from the best of the teachers. 48 घंटे की ड्यूटीज़ होती थी, पर उससे मसल मेमोरी में मेडिसिन आ गई, विच आई थिंक लिटरली गेव मी द बेस्ट knowledge how to treat patients, how to talk with patients, how to empathize with patients, and how to explain things which patients want to understand but find it very technical. So this was me before I actually became a practicing doctor. Interesting story. Like one of the question I have from you, like is the environment of your whole family pushes you to become doctor, or let's say if I am like born in a medical family, so मैं medical बनूंगा, engineering family में हो रहा हूँ तो engineer बनूंगा. Is it true or like आपको बनना ही था? यार वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यार तुम लोगों की तरह ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, ठीक है ना? ना हमारे पास यूट्यूब था, ना हमारे पास एआई था, ना हमारे पास व्हाट्सएप था, राइट? तो कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? दूसरा ये था कि सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोफेशनल जॉब्स में, और प्रोफेशनल जॉब्स कौन सी थी? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, लॉयर बन जाओ. तो आई वुड से आई गॉट सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सपोजर बाय द टाइम आई केम इनटू द मेडिकल कॉलेज. मेडिकल कॉलेज में इफ़ आई रिमेंबर, मुझे बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द कॉलेज काउंसिल, राइट, मैं कभी भी दीवार की तरफ टेबल लगा के नहीं पढ़ पाता था, राइट? मेरी टेबल हमेशा ऐसे होती थी, राइट? एंड शायद तब से मुझे लगा था कि शायद मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा. इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, राइट? सो आई थिंक ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन विच हैपेंड एट अ लेटर एज व्हेन आई जॉइंड माई जॉब, राइट? So the opportunities were less, the information was less, and everybody was looking for security. But the moment I think I got exposed, I joined the first corporate hospital in North India, Fortis, when that was in a very nascent stage. जब डॉक्टरों को सिर्फ यही पता होता था यहाँ तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लो, राइट, और आप प्रोफेसर बन जाओगे, या अपनी क्लिनिक डाल लो, अपना हॉस्पिटल डालो. उस समय मैंने फिर ये वाली हरकतें करनी शुरू करी, राइट? बट या आई वाज बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी 28, बट यस आफ्टर दैट लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग. नॉट टू से दैट उससे पहले दिन एक्साइटिंग नहीं थी. या I hope that answers your question. Oh, definitely. Dr. Gaurav, you are in a niche industry of a hospital and a medical industry, okay, which is out of hospital, recovery hospital. So just tell us like what does this industry mean and how big is this industry? Thanks for asking this, Ansh. Yeah. Right.
मुझे इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किए आज 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो, राइट। तो टू सिंप्लीफाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखते हैं, राइट, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, ऑपरेशन थिएटर्स, कैथ लैब्स, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। इमरजेंसी होती है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं बिकॉज हॉस्पिटल्स आर नॉट हैप्पी प्लेसेस, राइट। हम घर आना चाहते हैं, राइट। घर पे क्या क्या हम बिल्कुल ठीक हो गए? क्या जो इंसान की हार्ट सर्जरी हुई वो घर आते ही क्या कल से नौकरी पे वापस चला जाएगा? ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, द फैमिली इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, ही स्टिल नीड्स केयर, राइट। एंड कैन एवरी बी एट होम एंड इन द हॉस्पिटल? एक पेशेंट जिसको स्ट्रोक हो गया, एक पेशेंट जिसकी स्पाइन इंजरी हो गई, उसकी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, उसकी जान बच गई, लेकिन जब वो घर जाएगा वो बेड रिडन है, वो महीनों तक बेड रिडन रहेगा, राइट। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां उसकी फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट चाहिए टू गेट अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट। उसे बहुत सारे लोग चाहिए, नर्स चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, राइट। एक ऐसी जगह चाहिए जो घर और हॉस्पिटल के भी बीच में है, जिसे हम ट्रांजिशन केयर या रिकवरी हॉस्पिटल बोलते हैं। So out of hospital care very easily is anything which is outside the hospital, right? And which I would say fills the gap or fills the bridge of out of hospital care. And this was non-existence before 2012 when we started HCH, right? It was a pioneer concept which we brought in. Dr. Gareth Jones, who's our chairman, started this in UK in 1996. And then brought it to this country with the partnership and JV with the Burmans, who are the promoters of Dabur, and that's how the journey started. Makes sense, makes sense. You started in 2012. Yes. Before that, how was this industry look like? So, for example, if I was searching for out of hospital services and something like that, how was patient were solving this problem? तो I'll tell you my own examples when I was a doctor or I was a hospital head or a hospital administrator. तो बहुत बार पेशेंट के रिलेटिव्स मेरे पास आते थे, डॉक्टर साहब आप एक नर्स दे दो, आप घर पे थेरेपिस्ट भेज दो, आपके डॉक्टर को भेज दो कि घर आके देख लें, हमें रोज़ आना पड़ता है टाँके बदलवाने के लिए, राइट। और मैं कहता था यार मेरे पास तो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं, तो मैं घर से कहाँ दे दूँ, राइट। एंड द पेशेंट्स एंड द फैमिली वर लेफ्ट टू फेंड फॉर मे बी अनट्रेन्ड रिसोर्सेज और पीपल हु वर नॉट even I would say healthcare workers who were maids, right, or so-called quacks, right. यहाँ कोई बंदा जो थेरेपिस्ट के साथ कर के सीख गया, right. So that was the condition, right. I still believe that when I was also young, there was this whole concept of कि डॉक्टर साहब घर आएंगे, right. But slowly by the time I became a doctor, एक तो डॉक्टर कम थे, हॉस्पिटल ज़्यादा हो गए और लोगों को कहीं ना कहीं ये अपनी इज्जत में कम लगने लग गया कि मैं किसी घर क्यों जाऊँ, राइट। सो आई थिंक दैट्स हाउ दिस होल इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड। एक टाइम पे डॉक्टर की एक कम्युनिटी होती थी, वो एक फैमिली डॉक्टर होता था, उसकी इज्जत होती थी तो वो जाता था, फिर वो कम होता चला गया एंड देन देयर वाज नथिंग एल्स लेफ्ट एंड देन वी स्टार्टेड द इंडस्ट्री वेयर वी सेड कि नहीं यार, यू कैन नाउ ट्रस्ट समबडी हु इज क्रेडिबल, राइट, हु इज नॉट जस्ट अ सिंगल पर्सन जो कि गायब हो जाएगा जब आपको जरूरत होगी, हु विल टेक the guarantee of what is happening. We will give you people who are trained, who can deliver alone at home, not with the support of so many people. And then there's whole paraphernalia like teleconsultation, which is OPD equivalent, to ICU at home, which is ICU equivalent, to setting up post-operative care at home, which is a ward equivalent, to providing pharmacy at home, providing lab sample collection at home, providing equipment support at home. And then if you can't be at home and if you can't be in the hospital, you can come to our recovery hospital. So that's a whole paradigm. Makes sense. Dr. Gaurav, you have built a category. Okay, that was an idea. I am not sure we are still building it. No, I mean definitely We started to build a category. Yeah, or which is a very, very hard thing to do. If someone is starting something new and into their category, maybe in different category, what's your one piece of advice you want to give them? Because at the end it is very, very hard thing. How they should target their problems, how they should look at the industry, how they should convince other people. Hard question to answer, but I would make it very easy. I think when you're creating a category, you also don't know what you're creating. So you need to be very agile. You need to accept and acknowledge your mistakes and learn from them so fast and never shy away from taking advice from people whom you can trust.
जितनी जल्दी अपने आप को बदलोगे, जितनी जल्दी मॉडल को बदलोगे, जितनी जल्दी ये समझ जाओगे कि किसी और के पैसे को जलाना नहीं है, राइट। और सबसे ऊपर अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और उससे किसी का भला हो रहा है, स्पेशली इन हेल्थ केयर, तो आप सक्सेसफुल होगे। पर अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो फन्ने खा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है और टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं। One good idea which is doing good to people, but tweakable as per the circumstances, as per the market, can grow very big. That's my advice. Although I don't think that capable to give advice. No, definitely. I mean, you are right. Let's think from a customer perspective, ठीक है? Because let's say जब आपने भी स्टार्ट किया होगा, nobody मतलब स्टार्टिंग में कोई अडेप्ट करना नहीं चाहता कुछ भी नई चीज़, ठीक है? एवरीवन हैव कि ओके मैं तो डॉक्टर के पास ही जाके कराऊंगा, मैं हॉस्पिटल में जाके कराऊंगा, बट लेट्स से इफ समबडी इज स्टार्टिंग देयर ओन इंडस्ट्री, हाउ दे कैन कन्विंस द कस्टमर्स और द पीपल हु आर गोइंग टू बी बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस? So always, if you don't have your own credibility, create your credibility and then ride on to somebody's else credibility. तो हमने किसी और की क्रेडिबिलिटी पे राइड करके चलो। तो हमने क्या किया इस केस में, हमने पहले अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करी। We had very strong brand with us, which is the Dabur Group, right? It stands for trust, right? We created the best of the infrastructure, right? We had the best of the people delivering the services, right? And we first of all brought technology where ये क्वेश्चन कि नर्स घर पे कर क्या रही है, डॉक्टर घर पे कर क्या रहा है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो घर पे कर क्या रहे हैं, हमने उसको टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। सो वी वर एबल टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग एट होम and do a quality analysis, right, and show it to the doctor of the patient कि देखो सर आपके पेशेंट के साथ सब कुछ सही हो रहा है। Now this doctor became our fulcrum, क्योंकि डॉक्टर की तो सब सुनना चाहते हैं, राइट। आपने भी बोला कि मैं अपने डॉक्टर की मानूंगा, राइट। जब डॉक्टर ने बोला ये अच्छे लोग हैं, राइट, ये अच्छी होम हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, वहाँ से हमारी क्रेडिबिलिटी बननी शुरू हुई। एंड आई स्टिल बिलीव इफ यू डू गुड फॉर द पेशेंट यू विल ऑटोमेटिकली मेंटेन क्वालिटी। सो वी बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू हैव स्टैंडर्ड्स, बिकॉज NABH के पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे एक्रेडिटेशन के। सो विद द इंस्टीट्यूट कॉल्ड क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट, हमने उसके साथ होम हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स बनाए। आई एम स्टिल द चेयर ऑफ द टेक्निकल कमेटी, राइट। फर्स्ट टाइम डिफरेंट होम हेल्थ केयर कंपनीज कॉम्पिटिशन एक टेबल पे आया, स्टैंडर्ड्स बनाए, बिकॉज हम क्वालिटी डिलीवर करना चाहते थे, हम क्रेडिबिलिटी लाना चाहते थे। और फिर हमने उसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से भी एंडोर्स कराया। सो बहुत मेहनत लगती है क्रेडिबिलिटी बनाने में, और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में आप डॉक्टर की सुनना चाहते हो, राइट। आज की डेट में आपने बोला मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, पर दिन में मुझे नहीं पता मुझे कितने फ़ोन आते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए करें क्या, या इस डॉक्टर के पास जाएं कि नहीं जाएं, राइट। दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। सो वी रोड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर प्रमोटर्स, ऑफ आवर प्रिस्क्राइबर्स, एंड डेफिनेटली जो पेशेंट्स हमसे ठीक होके गए उन्होंने बहुत लोगों को रेफर किया, बिकॉज डिमांड बहुत है। आपने बोला ना, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि घर में सर्विस चाहिए तो चाहिए क्यों, राइट। तो डिमांड बहुत थी, सप्लाई की प्रॉब्लम थी, हमने उस सप्लाई की प्रॉब्लम को क्रेडिबिलिटी से, क्लिनिकल क्वालिटी से ऊपर लेके आए। Dr. Gaurav, I mean, you have acquired several companies, and like acquisition is very easy, okay? But If you say so. no, if you have money, then it is very easy. But I think अगर पैसा जलाना हो तो it depends. Yeah. So, but integration is very hard. Like how you are integrating other people, other ideas, other things into your company, and then working like a team. So, just tell us like how hard it is, and any story you would like to share in your whole journey of Sure. So I have many stories, but I'll tell you. So I absolutely agree कि integration से तो acquisition is much more easier. Right. In absolution, it is not. Right. You have to choose something to acquire. Right. But integration से तो it is much more easier. And I have done various hats, right, from being a medical administrator, being a doctor, being a medical administrator, being a hospital head, then being somebody who is responsible for acquiring business, a chief operating officer, and the president of the company, right. हर रोल में इंटीग्रेशन का रोल ना बहुत डिफरेंट हो जाता है। और मेरे अर्ली जो डेज ऑफ इंटीग्रेशन वो हैं जब फोर्टिस ने स्कॉट्स को एक्वायर किया था। दिस वाज वे बैक इन 2005 एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम फ्रॉम फोर्टिस विच वाज एक्वायरिंग स्कॉट्स। और मेरी विडंबना क्या थी
कि मैं अमृतसर जैसे शहर में था जहाँ फोर्टिस का अस्पताल था सिर्फ 35 बेड का और एस्कॉर्ट्स का हॉस्पिटल था 150 बेड का, और एस्कॉर्ट्स का ब्रांड वॉज मच मोर देन फोर्टिस, राइट? And we were told that now you need to move as a medical administrator into that hospital, and then you have to make people listen to you and work as per Fortis norms, right? Similarly, in my second stint, I had a industry icon as JSPL, Jindal Steel Plant, and we had an operation and management process with Fortis. वेयर अगेन JSPL said कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, तुम क्या चीज़ हो मेरे सामने, और फोर्टिस के लोग तो हम तो 70 हॉस्पिटल करते हैं, तुम क्या चीज़ हमारे सामने. सो दोज आर द चैलेंजेस, बट आई थिंक द ओनली वे टू understand the challenges is where you tell people that now you are a proud owner of 2 brands. You are part of Fortis Escorts. You are part of Fortis OP Jindal Hospital. You are part of HCH Suvitas. तब तुम्हारे पास दोनों ब्रांड्स के प्राइड फीलिंग है. आई थिंक दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स, एंड देन यू हैव टू नो, यू जस्ट कांट गो एंड से कि तुम जो कुछ कल तक कर रहे थे सब कुछ गलत था, राइट? यू हैव टू पिक एंड चूज एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल कैन improve upon what was happening. And also I would say be very cautious that you need to take the good things which are, don't lose them. You have acquired them to gain out of them, not to lose them, right? And it's a very fine balancing act जो हर I've been very fortunate to have a lot of I would say integrations, and at everything हर रोल का at a actional और at a कार्यकर्ता रोल आपका रोल है कि आप मिलके काम करो, राइट? और at a president level रोल is कि आप मैसेजिंग ऐसी दो that everybody feels that they're part of the family. Okay, now we are coming to a very interesting or that period which changed the whole healthcare ecosystem, which was COVID. I mean, I have seen like how that situation was, how the family were facing those situations, how the doctor were facing the whole situation. Like everything was so difficult at that period of time. You are in a healthcare industry. How that particular period affected you, HCAH, the whole medical industry according to you? यार देखो, मेडिकल इंडस्ट्री में तो मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है ना, सबने थाली बजाई थी, राइट? तो बट आई थिंक वो थाली बजाना वाला फेज तो फिर भी अच्छा था. बट ओके, आई विल टेल यू आवर स्टोरी ऑफ HCH बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव स्टोरी. इट टेल्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर आपके पास डिमांड है और आपकी विल है, राइट, और टेक्नोलॉजी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? इफ़ यू नो हाउ टू फुलफिल द डिमांड, technology and other levers are there. You have a very good team who's aligned to the thought process, who's aligned to the good of people, to saving lives. You can do wonders. So हमारी स्टोरी भी वैसे ही शुरू हुई कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई और हमें समझ में आया कि यार हमारे जो नर्सिस को पेशेंट्स के घर जाना है, हमारे जो केयर गिवर्स को पेशेंट के घर जाना, जाएंगे कैसे, राइट? और हमारी टीम्स जो थी वो जुड़ गई कि लोगों ने बाइक्स पे जाके छोड़ के आया जब पुलिस सब जगह रोक रही थी. हमारे नर्सिस ने खुद बोला कि सर हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो पेशेंट का क्या होगा मेरे को. यहाँ से हम शुरू हुए, एंड देन आवर कॉल सेंटर स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी कॉल्स. करना क्या है, अब होगा क्या, राइट? एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड अ हेल्पलाइन. बट वेरी सून व्हाट वी रियलाइज इज कि हेल्पलाइन में तो हमें नहीं कुछ पता, तो हमारे लोगों को क्या बताएंगे. हम भी रोज सीख रहे थे. बट देन देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, डॉक्टर से बात करा दो, राइट? बिकॉज पहले तो मेरे को बुखार होगा तो मैं गोली खा लूँगा या डॉक्टर के पास चला जाऊँगा. अब बाहर मैं निकल नहीं सकता, गोली खाऊंगा तो ये नहीं पता कि बुखार है कि कोविड है. दैट्स वेयर वी स्टार्टेड डॉक्टर हेल्पलाइन. जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो उसके ऊपर कोविड टेस्ट लिखा, उसके ऊपर दवाइयाँ लिखी, राइट? अब मैं कोविड टेस्ट कहाँ से कराऊँ? तो फिर हमने कोविड टेस्टिंग एट होम शुरू करी, होम फार्मेसी शुरू करी, राइट? करते करते हमारे पास उस समय वो फ्लाइट्स आई थी बाहर से, क्वारंटीन करना था लोगों को क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे. हमारे पास ये आया कि होटल के अंदर आप डॉक्टर और नर्सिस लगाओ ताकि इनको क्वारंटीन कर सकें. करते करते ये सारी चीज़ें फर्स्ट वेव में ही सरकार से हमें एक टेंडर आया कि जी हम इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हैं, इनको घर में रखना पड़ेगा, राइट? लेकिन कैसे पता चले? सरकार ने क्राइटेरिया निकाला कि 95% से नीचे होएगी SpO2, तो यहाँ करो, ये है तो वो करो. लोगों ने खुद नापना शुरू कर दिया, पैनिक हो गया. दैट्स वेयर दे सेड कि आप एक कॉल सेंटर नर्सिस का बिठाओ, राइट? जहाँ पे ये सबको कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि आप ठीक हो या आप कोविड सेंटर में चले जाओ या आप अस्पताल में चले जाओ, राइट?
ये सब करते रहे। यह चीज़ हमने दिल्ली सरकार के साथ करी, पंजाब सरकार के साथ करी, कर्नाटका सरकार के साथ करी, जहाँ पे कर्नाटका सरकार के साथ तो हमारे पास कन्नड़ स्पीकिंग लोग भी इतने नहीं थे। एंड दैट्स वेयर यू यूज टेक्नोलॉजी दैट 2000 पीपल वर सिटिंग एट होम एट वेरियस प्लेसेस, right? Tier 2 cities, Tier 3 cities, right? And they were working with us. That was the scale, 20 million people. And this scale we had to even take huge in the second wave because तब तो त्राहिमाम हो गया था. But I think सबसे चेंज मूवमेंट जो आया HCH के लिए वो था कि जब सेकेंड वेव आई और सब लोग हमारे ICU एट होम का ये हालत हो गई थी कि पीपल वर रेडी टू पे अस 1 लाख रुपीज़ अ डे. ऐसे ऐसे ऑफर्स हमारे पास आ रहे थे कि कोई बीमार नहीं है, बना के रख दो अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ICU में बेड ही नहीं है, राइट? एंड वी कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट? बट देन व्हाट हैपेंड इज दैट पीपल स्टार्टेड डाइंग इन एम्बुलेंसेस. मेरा फ़ोन किसी ने पता नहीं कहाँ कौन सी साइट पे डाल दिया, मेरा फ़ोन ऐसे बज रहा था कि मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा था. इट वॉज सो डिप्रेसिंग. एंड एट दैट टाइम वी हैड अ बंच ऑफ डॉक्टर्स, nurses, and all of 50 oxygen concentrators. We took all of that and we put it in a hotel. And we started taking patients who were going round and round in ambulances. Right? And that's where we were able to save thousands of lives. And that gave us an idea कि हम home care तो कर ही रहे हैं, but there is a place of another thing called transition care. And that's where the idea was born of having transition care, right? And today we have 7 recovery hospitals of transition care, जिसमें एक में आज पटेल नगर में आप भी बैठे. So COVID, I think, changed life for everyone. I think जब आप पोस्ट पीरियड को वापस देखते होगे, you must feel a goosebump moment like you have in life and how that. I would never want to be in that position again. In life for everyone, but I don't think उस समय हर घर में जहाँ आप किसी को जानते थे कोई मौत हो रही थी. हर फोन कॉल पे लगता था कि अब पता नहीं क्या हुआ. So I don't think the world should ever go back there. Okay, now we are coming back to the business part of the whole recovery and the out of hospital sector. Okay, can you just break down the business for me, like how much it costs to a customer, and then how much you charge, and then how much margin you make? So like somebody who is seeing from a third party perspective, how they would look this business out. अंश, अगर आपको हमारा बिज़नेस समझना है तो हमारा बिज़नेस इज़ ये रिकवरी हॉस्पिटल है. और इस रिकवरी हॉस्पिटल हमारे 5 सिटीज़ में है, राइट? 2 दिल्ली में, 2 हैदराबाद में, एक बैंगलोर, एक कलकत्ता और एक मुंबई, राइट? हैदराबाद हमारा सबसे बड़ा बेस है. वहाँ पे हमारे पास एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी है और एक 70 बेड का हॉस्पिटल भी है. ये पटेल नगर में जो हमारा हॉस्पिटल है ये 40 बेड का है. गुड़गांव वाला अनदर 50 बेड का है, राइट? मुंबई में, नवी मुंबई खारगर में है, राइट? इसमें जो पेशेंट आते हैं वो लार्जली 3 तरह के पेशेंट आते हैं. या तो जिसको लकवा मार जाए, स्ट्रोक हो, या जिसको स्पाइन इंजरी हो, या जिसको हेड इंजरी हो गई हो, राइट? और यंगस्टर्स में तो जो एक्सीडेंट मारते हैं, राइट, दारू पी के या बिना हेलमेट के पिए, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं. और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनको दोबारा से नॉर्मल लाइफ में लेके आना. यानी व्हेन आई से दे विल सिट, दे विल स्टैंड, दे विल स्पीक, they will swallow and they will walk again, right? वो कर रहे थे, right? They will do it again, right? And for that you have a physical medicine and rehab doctors, right? MD डॉक्टर्स जो इसका इलाज करते हैं, उनकी टीम होती है. फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट. एंड देन देयर इज़ अ बहुत बड़ा एक रिहैब एरिया होता है जहाँ बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, जैसे जिम में आप देखते हो, रोबोटिक्स आप देखते हो, जिससे उनका इलाज होता है. अब ऐसे हॉस्पिटल में जब आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में लाखों रुपए दे के आए हो, राइट? जहाँ पे हॉस्पिटल में आपने शायद दिन का 50 से 60 हज़ार से 1 लाख रुपया भी दिया होगा, राइट? हमारे ऐसे रिकवरी हॉस्पिटल्स में यू डोंट पे मोर देन 10,000 रुपीज़ अ डे, राइट? एंड हमने एक नया मॉडल बनाया है. हमने मॉडल क्या बनाया है कि जब आप डॉक्टर से पूछते हो सर सर्जरी के बारे में कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा ना, तो डॉक्टर बोलता है हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं. पर जब पेशेंट हमारे पास आता है बहुत डिफिकल्ट होता है बताना कि दोबारा वॉक कब करेगा. तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स का जो इतना डेटा है उससे एक प्रेडिक्टिव माइलस्टोन्स रिकवरी बनाई है, राइट? तो हम डे 1 पे पेशेंट की कंडीशन से प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कब बैठेगा, कब खड़ा होगा, कब बोलेगा, कब खाएगा और कब वॉक करेगा.
तो हम उस प्रोडिक्टिव मॉडल से चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट को ये नहीं बोल रहे हैं आप ज़्यादा दिन लंबा, हम बोल रहे हैं आप तो फास्टेस्ट रिकवरी मॉडल में आ जाओ, वी वांट यू टू रिकवर फास्टेस्ट। बट ऑन एन एवरेज व्हाट वी हैव सीन इज कि 30 दिन में हमारे पेशेंट जो हैं वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो ये है कॉस्ट टू पेशेंट मोटा मोटा फॉर आर पेशेंट्स इन रिकवरी हॉस्पिटल्स। यही चीज़ जब घर पे चले जाते हैं, तो अगर आप आईसीयू सेटअप घर पे बना रहे हो तो इट कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम 5 to 6,000 अ डे। और अगर आप केयर गिवर ले रहे हो विच इज़ कि नहला दे, कपड़े चेंज कर दे, खाना खिला दे, ब्लड शुगर चेक कर ले, दवाई दे दे, राइट। जब आप केयर गिवर की बात कर रहे हो विच इज़ नॉट अ ट्रेन नर्स, राइट, तो यू आर टॉकिंग एनीवेयर फ्रॉम 1,000 to 1,500 रुपीज़ अ डे। सो दिस इज द प्राइस रेंज। Very interesting and very affordable too. वेरी अफोर्डेबल। आप हॉस्पिटल में तो और अब तो हमने अफोर्डेबिलिटी के लिए और बहुत सारी चीज़ें करी हैं कि हमारे रिकवरी हॉस्पिटल इंश्योरेंस से कवर्ड है, राइट। हम बहुत नीडी पेशेंट्स के लिए हम क्राउड फंडिंग भी करते हैं, राइट। और अफोर्डेबिलिटी की चीज़ें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगल रूम में ही रहना है, हमारे पास ट्विन शेयरिंग रूम्स भी हैं, हमारे पास वार्ड्स भी हैं, और अगर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है तो आप डे केयर में आके भी सर्विसेज ले सकते हो। तो यही जो 10,000 रुपये पर डे है वो इस रिकवरी हॉस्पिटल में भी 2,000 रुपये भी हो सकता है, राइट। सो दैट्स अफोर्डेबिलिटी विच वी आर ब्रिंगिंग इन। Very nice. Dr. Gaurav, like what's your customer acquisition strategy? Because you are in a category where unless someone is having a crisis, वो सर्च नहीं करेंगे, वो आपको I don't think आपके बारे में जानेंगे भी. करेक्ट। So how you are tackling that problem and how it has changed over the time when you started out and right now? So कितना चेंज हो गया इस चीज़ में? सो यार कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज अनअवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी है, राइट। लोगों को लगता है सर्जरी हो गई, जान बच गई, घर चलते हैं, अब भगवान भरोसे है, या एक थेरेपिस्ट आ जाएगा वो ठीक करा देगा, एक केयर गिवर रख लेंगे उससे हो जाएगा, राइट। बट मैंने आपको बताया कितनी बड़ी टीम लगती है, 10 लोगों की टीम लगती है 30 दिन में किसी को खड़ा करने के लिए, राइट। तो यार हमारी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी इज़ अगेन एज आई टोल्ड यू कि जिसकी वो सुनना चाहता है वो डॉक्टर है। तो हमारी कस्टमर एक्विजिशन की डॉक्टर्स को कन्विंस करो, राइट। डॉक्टर सी आर प्रोडक्ट, दे कम हेयर, दे फील दैट देयर पेशेंट्स विल डू प्रिटी वेल एंड आई ट्रस्ट मी। एक सर्जन को जितनी खुशी होती है ना जब उसका पेशेंट वॉक करता है, आई कांट इवन टेल यू, राइट। वी सेंड वीडियोज बैक टू देम, सर देखो ये आपके पास ऑपरेशन टेबल पे था, अब ये चल के गया है। आई गेट कॉल्स, यार वेल डन। एंड सिमिलरली यही डॉक्टर्स जब पेशेंट्स को बताते हैं, राइट, तो उस समय देयर इज अ लॉट ऑफ सर्चेज स्टार्टेड हैपनिंग। सो डिजिटल मीडियम इटसेल्फ, गूगल, मेटा, देयर आर, एंड देन देयर आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू, राइट। बिकॉज हमारा कंज्यूमर और कस्टमर डिफरेंट है। कंज्यूमर तो ढूंढ नहीं सकता, बेचारा तो बेड पे है, राइट। पर उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन, एंड देन पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड हु नोज दिस कॉन्सेप्ट, राइट। और एक हमारा कैटेगरी ऑफ एक्विजिशन इज पीपल हु आर जो थक चुके हैं, जिनको स्ट्रोक 6 महीने पहले हुआ था, जो ढूंढ रहे हैं यार कि कुछ तो ऐसा मिल जाए, मैं तो तब तो गलती हो गई, घर चले गए, कुछ तो ऐसा मिल जाए, राइट, वो भी सर्च करते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारे प्रिस्क्राइबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनको हमारा काम पसंद है, उनसे हमें पेशेंट आता है। जो लोग डिजिटल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया, वो आते हैं। और एक बहुत बड़ा चंक हमारा पेशेंट है जो हमारे पेशेंट की खुशी देख के और पेशेंट किसी और को बताता है, तो उस तरीके से आते हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, राइट। So that is something which is our real wealth. Right. Very interesting stuff. Like, I have a follow-up question on this. Like, how content is evolving in this particular industry, according to you? क्योंकि मैं भी आजकल काफ़ी डिसीजन अपने हेल्थ केयर के कंटेंट देख के लेता हूँ. So, what's your whole worldview around like content in this medical industry? यार देख, ऐसा है कि मेडिकल इंडस्ट्री में ना लोगों को अस्पताल के अंदर तो समझ में नहीं आता कि डिजिटल मीडियम में देखना क्या है, राइट। वहाँ तो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर दिखते हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दिखती हैं, ठीक है। फोटो में इतनी बड़ी बड़ी अखबार में इतनी बड़ी बड़ी फोटोज़ दिखती हैं, राइट। तो यही जो कंटेंट है ना, यही उसके ऊपर पॉडकास्ट होती हैं डॉक्टर्स की, लिंक्डइन पॉडकास्ट होती हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, पब्लिक लेक्चर्स होते हैं, और फिर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो एजेंसीज बनाती हैं। बट वो सब कुछ ऑलरेडी लोगों को पता है, दे आर जस्ट एम्पलीफाइंग इट। हमारे केस में द कंटेंट्स इज सो नेसेंट कि व्हेन वी स्टार्टेड कंटेंट तो था ही नहीं। अस्पतालों ने सबको सिखा दिया गोल्डन पीरियड फॉर स्ट्रोक, राइट। दे पेंटेड द होल टाउन कि जैसे ही
आपके मुंह टेढ़ा हो जाए, हाथ नीचे चला जाए, राइट, आप अस्पताल की इमरजेंसी में भागो, स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन स्ट्रोक जब बच गया उसके बाद भी गोल्डन पीरियड है। आपकी बॉडी 90 दिन तक आपको याद दिलाती है कि सिग्नल्स भेजो ब्रेन को, सिग्नल्स भेजो और मैं दोबारा से एक्टिव हो जाऊंगी। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, गोल्डन पीरियड आफ्टर स्ट्रोक, राइट। और जो सब कुछ हम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन यार, कंटेंट ही बहुत कम है। इनफैक्ट आई थिंक वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कंटेंट नाउ। We write not less than 20 to 30 blogs per month, right, which go onto our website. We record podcasts of our doctors, right, of our internal doctors, external doctors. We do a lot of panel discussions which we put on our social media handles. But हम अकेले कितना ही कर सकते हैं, right? I think there we look towards people like you and your support, because I think what we are doing is a very very important and noble thing. Because अगर आपने किसी की जान बचा भी ली और वो बेड पे पड़ा है, राइट, स्ट्रोक में अगर आपने किसी की हेल्प नहीं करी है तो 60% लोग, मतलब 70% लोग 1.5 साल में मर जाते हैं। तो आपने जान बचा के भी क्या किया? आपने केयर गिवर की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि उसको एक बेड रिडन पेशेंट का ध्यान रखना है और आपने ज़िंदगी रिस्टोर नहीं करी, राइट। सो आई थिंक rehabilitation recovery is equally important as saving your life. So that's why hospitals save lives, we recover lives. Very interesting, very interesting. Now we are coming to one of my favorite segment. So, ठीक है, Dr. Gaurav, let's say all your interviews, all your articles, all your panel discussion were erased from the internet, and all you have next 60 seconds to leave something for this world. What you would love to leave behind? Oh wow. ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि हो सकता है। इतने सारे डेटा बैंक्स बना दिए, वो मस्क साहब बोल रहे हैं हम सब कुछ अब स्पेस में ले जाएंगे, जहाँ पे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा उनको। ऐसा भी होगा क्या? You never know. यार, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक व्हाट आई वुड वांट टू से इज कि वो करो जिसमें तुम्हारा मन लगे। इफ यू मेक वर्क योर पैशन, राइट, that's the best thing which you can do, and it will automatically create wealth for you. Never do something which your conscience doesn't allow, and don't let your conscience, हर एक की conscience अलग है, हर एक के ethics अलग है, पर उसे मरने मत देना। and जब भी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो कि लगे कि अब क्या होगा, right, figure it out. You will definitely figure it out. I really relate to what you are saying, because there is nothing impossible. Like if you really want to do something, मुश्किलें आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी और डिप्रेस भी हो गए, राइट। बट यस, अब मुझे तुम बोलो कि मैं मैराथन दौड़ दूँ तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। नहीं, आप दौड़ लोगे, ट्रस्ट मी। ओके डॉक्टर गौरव, who is the most impressive person you have ever met? यार, तुम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आ गए। अभी तक तो बहुत आसान चीज़ें पूछ रहे थे यार। बहुत सारे लोग हैं, बट एक बंदा जो बड़ा ही आई वुड से कॉन्टेक्चुअल है, राइट। आई मेट दिस पर्सन ऑन वन ऑफ माई इंटरनेशनल ट्रिप्स, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, एंड ही वॉज इन हिज अर्ली 60s, राइट। And he had been a salesperson all through his life in a MNC which is into telecom, right? And at the age of 52, he decided that he wants to do an MBA, right? And this is North America, right? And so his wife supported him कि अच्छा नहीं करनी है कर लो, and full time MBA, ऐसा नहीं executive MBA. एक हफ्ते बाद उसने अपनी वाइफ को आके बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे से आधी उम्र के बच्चे हैं, मैं इनके साथ जेल कैसे करूँ, ये क्या है असाइनमेंट्स ये वो। एंड उसकी वाइफ ने बोला, आई थिंक यू शुड गिव इट एटलीस्ट 2 more weeks, राइट। दैट गाय कंप्लीटेड हिज MBA, राइट। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट चेंज्ड। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला कि मुझे आता सब कुछ था, पर मुझे उसे आर्टिकुलेट नहीं करना आता था इनटू द राइट वर्ड्स। उसके बाद ही बिकेम अ कंसल्टेंट एंड ही सेड मेरे को आता सब कुछ था, अब मुझे आर्टिकुलेट करना भी आता है और लोग मुझे उसके पैसे देते हैं। But then again, his passions. So he became a consultant. Then he was brought as a visiting faculty in the same university where he did his MBA. But his passion now, is what? How to channelize AI in the most simplest manner, right?
डॉक्टर्स आर हेल्थ केयर इज़ वेरी नेम टू ए, सब बोलते हैं ना टेक टेक टेक, राइट. उस बंदे ने वहाँ पे मेरे को इनिशिएट किया चैट जीपीटी, क्लॉड, राइट, विद सिंपल थिंग्स. मैंने सी चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट कि अगर आप सही प्रॉम्प्ट नहीं देते चैट जीपीटी का, किसी बंदे से अगर सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सही जवाब कैसे देगा. तो मैंने बोला ये तो बेवकूफ़ है. तो उसने पता क्या किया मेरे सामने, उसने मेरे सामने चैट जीपीटी एक्टिवेट किया. डॉक्टर गौरव फ्रॉम इंडिया थिंक्स दैट यू आर एन इडियट. एंड चैट जीपीटी नो दैट्स अ रॉन्ग फीलिंग. एंड आई वाज व्हाट्स दिस हैपनिंग, राइट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ही वाज, उसके स्टूडेंट ने उसको राजमा चावल ला के दिए. एंड आई सेड ओ दैट्स अ नाइस डिश. ही सेड रुको, उसने चैट, एंड दिस इज लाइक सो रूडिमेंट्री थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग. बट उससे सोचो मेरी नॉलेज ऑफ यही तो उससे भी रूडिमेंट्री थी. उसने फोटो खींची और उसने लिख के दिया दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेंटेल बीन्स, ये सब लिख के दिया कॉल्ड राजमा चावल, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अ पर्सन हु वाज मच एल्डर देन मी, राइट, टॉट मी दैट अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहोगे और उसे enjoyable नहीं बनाओगे तो आप पीछे छोड़ जाओगे, right. So I was so impressed with that person, right. He was living his life, enjoying his life, such a jovial person, but he gave me such small lessons in life that has changed my life. Very nice, very nice. I think articulation is one of the important thing, be it in like real life, now it is in AI. Like if you are not giving or asking a right question, right prompt, you can't expect something to be right answer. Or इवन अब देखो ना, डॉक्टर के पास भी जाओगे सब कुछ आता है डॉक्टर को, पर उसने अगर आपको आर्टिकुलेट वेल नहीं किया, सही जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया, तो आप जाओगे नहीं अगली बार. इट्स सो नेचुरल, बट ही कुड पुट इट इनटू सच सिंपल वर्ड्स. या so I mean, Dr. Gaurav, you have given me a lot of advice in this till like the podcast we have done for 1 and 1.5 hour. I just want to ask from a different perspective, like what is the best piece of advice you have ever got? यार, I've been so lucky in life, Ansh, that I have got many mentors, many people who love for me, who care for me, and one thing which I learnt in life is कि advice अगर मिले फ्री में मिले तो ले लो, right. बट वन ऑफ द incidences which I'll tell you, क्योंकि मैं सिर्फ एडवाइस बताऊंगा तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा व्यूअर्स को, राइट. आई वॉज young 32-year-old hospital administrator, and again that integration was going on, right. And then I was working with administrative department of a non-healthcare entity, right, who was controlling the HR and administration of my healthcare entity, right. So friction हो रहा था क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, right. I was trying to hire doctors, right, but for them doctors were only employees, राइट, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि यार वैल्यू क्रिएशन क्या है, राइट. तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि एंड दैट वाज अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम. इट वाज एन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, राइट, जबकि यहाँ पे हेल्थ केयर में यू कांट हैव अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम. तो मैं रूल्स ब्रेक कर रहा था, राइट. जैसे डॉक्टर्स के लिए स्पेशल, सर नहीं मैं आपको स्टेशन तक गाड़ी दे देता हूँ, राइट. जैसे हमारे कल्चर में कभी ये है ही नहीं है कि वर्कर्स कहीं और बैठेंगे और ऑफिसर्स कहीं और बैठेंगे, राइट. हम तो नर्सेज भी वही खाना खाते हैं, डॉक्टर्स भी वही खाना खाते हैं, राइट. सो दिस वाज समथिंग. तो मैं रूल्स ब्रेक कर रहा था. तो एडमिनिस्ट्रेशन हेड का मुझे फ़ोन आया एंड ही लिटरली क्रैम्प्ड मी अप कि ये जॉब कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, आप कल्चर ख़राब कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई वाज, तुम्हें पता भी है. एंड उसने फ़ोन रख दिया एंड आई जस्ट कॉल्ड माई बॉस, राइट, हु वाज सिटिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम. आई वाज इन छत्तीसगढ़ एंड आई कॉल्ड, सर मैं नहीं काम कर सकता. तो ये पागल लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या, राइट. सर बताओ इसमें मैं कहाँ गलत था, राइट. आई वॉज फ्यूरियस कि यार यू आर नॉट लेटिंग मी डू माई जॉब एंड यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर टेलिंग मी टू फॉलो स्टूपिड रूल्स, राइट. माई बॉस ओनली सेड वन थिंग, गौरव 5 मिनट बाद बात करें. तो मैं कहा हाँ सर, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू फ़ोन उठा लिया था, ही वॉज अ वेरी बिजी पर्सन. तो मैंने कहा सर यस. चौथे मिनट पे उस एडमिनिस्ट्रेटर का फ़ोन आया मुझे, Dr. Sam, I'm really sorry. I shouldn't have spoken to you like this. I know you are trying to do a very tedious job, setting up new things here. I should also understand. Let's catch up for coffee. 6 मिनट पे मेरे बॉस का फ़ोन आया. हाँ भाई क्या करना है? तो मैं कहा सर वो तो कॉल आ गया उसका. तो कहते 5 मिनट की ना बहुत अहमियत है. What you did was reaction. What he did was response. Right? In our lives हमें समझ में नहीं आता है बहुत सारी सिचुएशंस को रिएक्ट कैसे करना है और रिस्पॉन्ड कैसे करना है,
वो जो लोग कहते हैं ना, पर अगर मैं यही एक स्टेटमेंट बोलता ना, डोंट रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड, वो जो कहते हैं ना कि जब रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप वो सीख जाओ ना तो बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई नहीं होएगी, लिविंग्स नहीं टूटेंगे, भाई बहन नहीं लड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, डाइवोर्सेस सब बच जाएंगे अगर आप रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करो। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मैं भी पूरी तरीके से नहीं कर पाता हूँ। यू आस्क्ड मी एंड सो आई एम टेलिंग यू। Very nice, very deep answer that I got till now. But yeah, I mean, great to have a conversation with you, Dr. Gaurav. Really loved chatting with you, knowing about you. And I think this podcast would be really helpful for any young founder who is seeing and want to build in a different category and want to build a new category. So yeah, thank you for coming on the podcast and lovely to chat. Thank you, Ansh. It was really pleasure being with your team, and I would just leave one message. अभी तक I always want to give back to the society by जो मुझे मिला मेरे मेंटोर से, जो मैंने सीखा मैं दूँ, बट अभी तक मेरा फोकस वर ऑलवेज यंग डॉक्टर्स, राइट। मैंने आई टेक प्राइड इसकी, मैंने बहुत सारे यंग डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में सिखाया है, एंड आई थिंक थ्रू योर सच पॉडकास्ट एंड द ट्रेमेंडस रीच विच यू पीपल हैव क्रिएटेड इन सच ए यंग एज, I would be able to contribute to many lives. And please, of all the viewers, anybody wants to approach to me, anybody wants to come back and ask any question, feel free to ping on my LinkedIn or maybe through you people. I don't know WhatsApp number तो मैं नहीं circulate करूँगा इस तरीके से, right? But whatever is the right medium, happy to help as much as I can. Now, all your link will be available in the description, so anyone can reach out to Dr. Gaurav through that. Thank you so much. Okay, thank you. It was lovely interacting.